انہوں نے کہا کہ میرے انصاری بھائی دیکھیے میرا مقصد یہ جاننا تھا کہ آپ کے اندر ایسی کون سی اسپیشل چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو لگاتار 3 دن تک جنتی کہا ہے. میں نے 3 دن تک آپ کے گھر میں رہ کر کے دیکھا آپ کے اندر کوئی اسپیشل چیز تو مجھے نظر نہ آئی. اب آپ بتا دیجئے کون سی خاص بات آپ کے اندر ہے. انصاری صاحب نے کہا دیکھو میرے بھائی میرے اندر ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے, جو ہے وہ تم نے دیکھ لیا, لیکن ایک چیز میرے اندر ہے, لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین. میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے ساتھ فراڈ نہیں رکھتا, اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا, کسی مسلمان کے لیے چھل کپٹ نہیں رکھتا. ولا احسد احدا علی نعمت, اور اگر میرے کسی مسلمان بھائی کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نوازا ہے, پیسہ دے دیا, دولت دے دیا, عزت دے دیا, شہرت دے دیا, میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا. آج سماج کو دیکھ لو, بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے, بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے, پڑوسی پڑوسی سے حسد کر رہا ہے, ساڑو ساڑو سے حسد کر رہا ہے, رشتہ دار سے حسد کر رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرے, اپنے دل کو چھل کپٹ سے پاک کر لو, اپنے دل کو حسد سے پاک کر لو. اور آگے بڑھیے. اللہ کو ایک اور چیز بہت پسند ہے, اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے توکل کرنا, اللہ کے اوپر وشواس کرنا, اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا. اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اے نبی جب آپ کسی کام کا فیصلہ کیجئے تو اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. آپ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں بھروسہ اللہ تعالیٰ کو؟ بولیں بھائی, کرتے ہیں آپ؟ چلیے ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو, پتہ لگ جائے گا کتنا کرتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے دکھایا گیا میری امت کا منظر. میں نے آسمان میں دیکھا بہت بڑی بھیڑ مجھے نظر آئی. میں نے سمجھا یہ میری امت کے لوگ ہیں. مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ. پھر اس کے بعد میں نے اور دیکھا آسمان کے اوپر, چاروں طرف مجھے آدمی ہی آدمی نظر آ رہے ہیں, انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ آپ کی امت کے لوگ, یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں, یہ مسلمان لوگ ہیں. اور یہ جتنی بھیڑ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے. ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا, ان کو 1 منٹ کے لیے عذاب بھی نہیں دیا جائے گا, ان کو ڈائریکٹ جنت میں ڈالا جائے گا. اتنا بیان کیا اللہ کے نبی نے, چلے گئے. اب صحابہ کرام آپس میں چرچا کرنے لگے, ڈیبیٹ کرنے لگے, بحث کرنے لگے, گفتگو کرنے لگے کہ وہ 70,000 کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے ڈائریکٹ جنت میں جائیں. کچھ صحابہ نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے, جنہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا. صحابہ نے سوچا ہم لوگ تو پہلے شرک کرتے تھے, پہلے گناہ کا کام کرتے تھے, ہم تو نہیں ہو سکتے, ہماری آنے والی نسلیں ہو سکتی ہیں, ہماری اولاد ہو سکتی ہے. کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, جو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں, جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا ہے. صحابہ کرام اپنے اپنے وچار کو پیش کرنے لگے. اتنے میں اللہ کے نبی واپس نکلے. آپ نے پوچھا کیا بات ہے, کس بات پر اتنی بحث ہو رہی ہے, آپ لوگوں کی چرچا کا وشے کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ابھی آپ نے بیان کیا 70,000 مسلمان جنت میں ڈائریکٹ جائیں گے بغیر حساب کے, بغیر عذاب کے. اے اللہ کے نبی ہم جاننا چاہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں. آپ نے فرمایا 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں کے اندر 4 کوالٹی ہوگی, 4 چیزیں ہوں گی. هم الذین لا یسترقون ولا یکتبون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون. ان کے اندر 4 چیزیں ہوں گی. پہلی چیز وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں. جھاڑ پھونک دعا پڑھ کر کے جھاڑ پھونک کرنا, دعا پڑھ کے کسی کو پھونکنا, دم کرنا, اس کو جھاڑ پھونک بولتے ہیں. اب جھاڑ پھونک 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک صحیح ایک غلط.
सही क्या है? कुरान की आयतों को पढ़ के दम करना, नबी की सिखाई गई दुआओं को पढ़ के दम करना, ये सही है। गलत क्या है? कुछ अता पता नहीं उल्टी सीधी चीजें पढ़ के दम करना, कोई अंतर मंतर जंतर तंत्र मंत्र पढ़ के दम करना, ये गलत है। और आज बहुत सारे ढोंगी लोग हैं मार्केट के अंदर, बच्चे को नजर लग गई, हमारे गांव की औरतें जाती हैं, पता है उस इंसान के पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई इल्म नहीं है, ढोंगी एक नंबर का है, नाटकबाज एक नंबर का है, बच्चे को लेके जाती है और करके वो दम कर देता है और ये समझती है साहब मेरा बच्चा ठीक हो गया, और उस बाबा की अकीदत इनके दिल में उतर जाती है। याद रखो मेरे भाई, दम करना और झाड़ फूक करना अगर कुरान से हो रहा है और नबी की दुआओं से हो रहा है तब तो जायज है, और अगर हराम चीजों से हो रहा है तो नाजायज है। और जो 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे उनकी पहचान ये होगी कि वो झाड़ फूक करवाते ही नहीं होंगे। क्या मतलब ये कि वो खुद सीखते होंगे। एक होता है कि आप डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाते हैं, और एक ये होता है कि आप खुद इलाज करना सीख लेते हैं। आप नबी की दुआओं को सीख लीजिए, आप कुरान की आयतों को सीख लीजिए। बच्चे को नजर लग जाए, बच्चा बीमार हो जाए, बड़ा सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है, सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दो। 7 बार सूरह फातिहा पढ़ लो। अल्लामा इब्न तैमिया ने लिखा है, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि सूरह फातिहा के अंदर बहुत सारी बीमारियों से शिफा है। 7 मरतबा सूरह फातिहा आपने पढ़ लिया, और सूरह फलक और सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़ के आप दम कर दीजिए। इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने एक दुआ सिखाई, उईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ऐ मेरे बच्चे, मैं तुझको अल्लाह की पनाह में दे रहा हूं, हर शैतान से, हर मुसीबत से और हर बुरी नजर से। ये दुआ पढ़ के दम कर दो, बच्चे को कोई नजर नहीं लगेगी, नजर लगी होगी तो बच्चा ठीक हो जाएगा। अब आज के दौर में चूंकि फास्ट फूड का जमाना है, हर इंसान को रेडीमेड चीजें चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हम दुआओं को सीखते नहीं हैं, हम मौलवी साहब से जाके दम करवाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर बगैर हिसाब के जन्नत में जाना है तो झाड़ फूक करवाना मत सीखो, करना सीखो। बच्चा बीमार है, बीवी बीमार है, बेटी बीमार है, खुद पढ़ के दम कर लो, दूसरे से कराने की नौबत ना आए। ये पहली पहचान है। और दूसरी पहचान, वला यक्तमून, और अपने बदन को दगवाते नहीं है। पहले के दौर में इलाज का एक तरीका था कि जहां जख्म होता था वहां पे आग से उसको दाग देते थे, आग के जरिए उसको दाग करके इलाज करते थे। जायज है मगर बेहतर नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा 70,000 जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे वो अपने बदन को दगवाते नहीं है। वला यततय्यरून, और वो किसी चीज से बदशुगुनी नहीं लेते, किसी चीज को मनहूस नहीं समझते। जैसे बाज लोग क्या होते हैं, 3 तारीख को शादी नहीं करते, 13 तारीख को शादी नहीं करते, 23 तारीख को शादी नहीं करते। बाज लोग मुहर्रम में शादी नहीं करते। बाज लोग गाड़ी चला रहे हैं, सामने से बिल्ली गुजर गई तो ब्रेक मार देते हैं, नहीं साहब बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो ये सारी चीजें बदशुगुनी है, और इस्लाम के अंदर बदशुगुनी हराम है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर कोई भी चीज, कोई भी जगह, कोई भी इंसान से शुगुन लेना, बुरा शुगुन लेना, ये जायज नहीं है। अल्लाह के वो 70,000 बंदे जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे वो किसी चीज से बदशुगुनी नहीं लेते। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो 70,000 लोग अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करते हैं, अल्लाह के ऊपर विश्वास करते हैं, अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं। तो ये 4 चीजें अगर हम अपने अंदर पैदा कर लें तो हम उन खुशनसीब लोगों में शामिल हो सकते हैं जिनको बगैर हिसाब के अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। तो अल्लाह को तवक्कुल करने वाले, अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाले लोग बहुत पसंद है। और यहां एक बात मैं और बता दूं, आप बीमार हो गए, अब आपके पास 2 रास्ता है। एक रास्ता यह है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करवाएं, और एक रास्ता है साहब हम डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे, हम इलाज नहीं करवाएंगे, हमें बीमारी अल्लाह देता है, अल्लाह ही ठीक करेगा। अगर ये सोच करके आप डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते हैं तो ये तवक्कुल नहीं है, ये गलत है, ये हराम है। शरीयत ये कहती है आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, आप इलाज करवाएंगे, लेकिन हाँ आप ये अकीदा रखेंगे कि डॉक्टर से हम इलाज तो करवा रहे हैं, हम इंजेक्शन तो ले रहे हैं, हम ऑपरेशन तो करवा रहे हैं, हम मेडिसिन तो ले रहे हैं, मगर उस दवा के अंदर, उस इंजेक्शन के अंदर, उस डॉक्टर के इलाज के अंदर शिफा पैदा करने वाला अल्लाह है। अल्लाह चाहेगा
इंजेक्शन से हम ठीक हो जाएंगे। अल्लाह नहीं चाहेगा, इंजेक्शन लगेगा फिर भी हम ठीक नहीं होंगे। ये अकीदा अगर रखा जाए तो ये तवक्कुल है मेरे प्यारे साथियों। तो अल्लाह की जात पर भरोसा भी करना है और असबाब भी इख्तियार करना है। इन दोनों के मिक्सचर का नाम तवक्कुल है। अल्लाह के ऊपर भरोसा करके असबाब को छोड़ देना ये तवक्कुल नहीं है। और आगे बढ़िए, अल्लाह को और क्या पसंद है? अल्लाह को फराइज की पाबंदी बहुत पसंद है। फर्ज नमाज, रमजान का फर्ज रोजा, फर्ज ज़कात, फर्ज हज, अगर इसकी पाबंदी आप करते हैं अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला फरमाता है मेरा बंदा जब फराइज को अदा करता है, फर्ज नमाज पढ़ता है, फर्ज रोजा रखता है, फर्ज ज़कात देता है, फर्ज हज करता है, मेरा बंदा मेरे करीब आता है। उसके बाद जब मेरा बंदा नवाफिल का एहतिमाम करने लगता है, नफिल रोजा रखने लगता है, नफिल नमाजें पढ़ने लगता है, नफिल इबादतें करने लगता है, मेरा बंदा मेरे और ज्यादा करीब आने लगता है। यहां तक कि मैं अपने बंदे से मोहब्बत करने लगता हूं, और जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करने लगता हूं, मैं अपने बंदे का कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं अपने बंदे की आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, और मैं अपने बंदे का हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, और मैं अपने बंदे का पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। क्या मतलब? आंख बन जाता हूं, कान बन जाता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप फराइज की पाबंदी करेंगे, नवाफिल की पाबंदी करेंगे, अल्लाह आपके कानों की हिफाजत करेगा, अल्लाह आपकी आंखों की हिफाजत करेगा, अल्लाह आपके हाथों की हिफाजत करेगा, अल्लाह आपके पैरों की हिफाजत करेगा। आप कान से कोई गलत बात नहीं सुनेंगे, आप आंखों से कोई गलत बात नहीं देखेंगे, आप हाथों से किसी गलत बात को टच नहीं करेंगे, आप पैरों से किसी गलत चीज की तरफ चल के नहीं जाएंगे। जब अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह आपकी हिफाजत करता है, आपके बॉडी और आपके शरीर की अल्लाह ताला हिफाजत करता है और गुनाहों से आपको बचाता है। एक और चीज है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं, आए अल्लाह के नबी, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो अगर मैं वो अमल कर लूं तो मैं जन्नत में चला जाऊं। ओ लोगों, तुम भी अपने मौलवियों से मसला पूछते हो, उल्टी सीधी चीजें पूछते हो, उल्टे सीधे सवालात पूछते हो। अभी आज व्हाट्सएप पर एक लड़की का मैसेज आया, एक औरत का मैसेज आया, मौलवी साहब मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, लड़का मुझसे जान छुड़ाना चाहता है, लड़का मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ, कोई दुआ बता दीजिए, कोई वजीफा बता दीजिए ताकि वो लड़का मेरा हो जाए। मैंने कहा या अल्लाह ये मुसीबत है। मैंने फौरन उसको ब्लॉक मारा। ये आज के दौर में हो रहा है। लोग मेरे पास सवाल करते हैं, शेख साहब मैं एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूं, उसका बाप तैयार नहीं हो रहा है, तो शेख साहब कोई दवा बता दीजिए कि बाप राजी हो जाए। भाई सीधी सी बात है, अगर आपको कोई रिश्ता पसंद है, किसी लड़की के बारे में आपने सुना वो लड़की नेक है, अच्छी है, दीनदार है, खूबसूरत है, रिश्ते का पैगाम भेजो। लड़की के माँ बाप तैयार है, अच्छी बात है, तैयार नहीं हो तो काम खत्म। हराम तरीका इस्लाम में नहीं है, नाजायज रास्ता इस्लाम में नहीं है। इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप पहले चक्कर चलाएं और उसके बाद शादी करें। तो आजकल मौलवियों से सवालात अजीबोगरीब करते हैं। बाज लोग तो इतने फालतू सवालात करते हैं कि सीधे उनको ब्लॉक करने का मन करता है। सहाबा अल्लाह के नबी के पास आते थे, सवाल कैसे करते थे, अखबिरनी अन अमलिन युदखिलुनी अल जन्ना, ऐ अल्लाह के नबी मुझे ऐसा अमल बता दीजिए अगर वो अमल मैं करूं तो मैं जन्नत में चला जाऊं। आपने फरमाया दो काम कर लो, इज़हद फी दुनिया युहिब्बकल्लाह, दुनिया से अपनी दिलचस्पी खत्म कर दो, दुनिया से अपना इंटरेस्ट खत्म कर दो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। दुनिया के चक्कर में न पड़ो, दुनिया में रहो, दुनिया कमाओ, मगर दुनिया से दिल मत लगाओ। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दुनिया से दिल मत लगाओ मेरे भाई, ये बेवफा है ये दुनिया। जायदाद बनाने वाले जमीन के नीचे दफन है, बैंक बैलेंस इकट्ठा करने वाले जमीन के नीचे दफन है, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाले जमीन के नीचे दफन है। दुनिया से अपना इंटरेस्ट खत्म कर दो, जैसे हमारे नबी ने खत्म किया। हमारे नबी कैसे रहते दुनिया में? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कैसे रहते थे? सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी को देखा, आप एक चटाई पर लेटे हुए हैं,
मामूली सी चटाई पर लेटे हुए और पीठ पर चटाई के निशानात पड़े हुए हैं। आपने फरमाया, सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप चटाई पर लेटते हैं, आपकी पीठ पर ये निशान पड़ जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐ अल्लाह के नबी, हमें इजाजत दीजिए, हम आपके लिए गद्दे का इंतजाम कर दें, हम आपके लिए आरामदेह बिस्तर का इंतजाम कर दें। आपने फरमाया, नहीं नहीं ऐ मेरे सहाबा, माली वली दुनिया, मेरा दुनिया से क्या लेना देना है। मा अना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्लत ताता शजरतिन, अरे मैं तो एक मुसाफिर की तरह हूँ। एक मुसाफिर जब सफर पे निकलता है, किसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाता है, थोड़ी देर आराम करता है, फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ये दुनिया मेरी वक्ती आराम गाह है, ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल अल्लाह की आखिरत है, मेरी मंजिल जन्नत है। आप लोगों की मंजिल क्या है? बोलिए, जन्नत पाना है नहीं पाना है? ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, ये आपको जन्नत में लेके जाने के लिए इंतजाम किया गया। यहाँ पे आपने जो दान खैरात चंदा दिया है, वो इंशाअल्लाह वो आपके गुनाहों का कफारा और आपको जन्नत में लेके जाने का जरिया बनेगा। आइए, रात का आखिरी टाइम है, जाते जाते अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, आपसे भी कहना चाहूंगा, जाते जाते अपनी जन्नत की तैयारी करके जाइए, इदारे के लिए ताउन करते हुए जाइए मेरे भाइयों। और मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह जो भी इस इदारे को ताउन करके जाए, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए और सबको जन्नत का हकदार बनाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो दुनिया से बेरग़बत हो जाओ, दुनिया से अपना इंटरेस्ट खत्म कर लो। और अगर ये चाहते हो कि लोग मुझसे मोहब्बत करें तो लोगों से बेपरवाह हो जाओ। लालच मत करो, लोगों के हाथ और लोगों के पैसे की तरफ नजर मत डालो, लोगों से अपने आप को बेनियाज कर लो, लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। लोग लालची लोगों से लोग मोहब्बत नहीं करते, लोग खुददार लोगों से मोहब्बत करते हैं। तो ये राज बताया अल्लाह के नबी ने। और एक आखिरी चीज बयान कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि आपका सब्र और रात का आखिरी टाइम है, सब्र और बर्दाश्त की इंतहा हो रही है, काफी देर से आप किताब सुन रहे हैं। एक आखिरी चीज बयान करके बात खत्म करता हूं। अल्लाह ताला को ऐसे लोग भी बहुत पसंद है मेरे प्यारे साथियों, जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, जो मौका पड़ने पर अल्लाह की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह ने फरमाया सूरह सफ के अंदर कुरान के 28वें पारे में, इन्नल्लाहा युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो अल्लाह की राह में। साहिल आलम साहब ने ये 500 रुपए का चंदा दिया है, अल्लाह इनके इस चंदे को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी दुनिया और आखिरत में इनको कामयाब करे। मेरे प्यारे साथियों, आइए और जाते जाते इस इदारे को ताउन करके जाइए, अल्लाह आपके चंदे को, आपके दान को कबूल फरमाए। अल्लाह